Islamic Concept Clarity. بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کا سوال ہے ایک ایسا سوال جو اکثر زبانوں پر آتا ہے. گاڈ کو کس نے بنایا، کیسے بنایا اور کہاں بنایا؟ یہ سوال بظاہر سیدھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی محدود سوچ اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. اب ہم اللہ کی دو عظیم صفات بدیع اور خالق کا کچھ جائزہ لیتے ہیں. یہ دونوں صفات قریب قریب معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. صفت بدیع ٹائم اور سپیس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کیا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم. ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو بے مثال بنایا. اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لسان العرب میں بدیع کا مطلب ہے المبتدئ الشیء لا علی مثال سبق، یعنی ایسا وجود لانے والا جس کی کوئی مثال پہلے نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ٹائم اور سپیس کو ایبسلیوٹ نتھنگنس سے پیدا کیا، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا، نہ وقت، نہ جگہ، نہ میٹر، نہ انرجی، نہ کوئی ایگزامپل، نہ کوئی پروٹوٹائپ. تب اللہ نے اپنے امر کن فیکون سے انہیں وجود بخشا. یہ کریشن بالکل بے مثال ایبسلیوٹ اوریجنیشن تھی. اسی لیے ان کے ذکر کے ساتھ صفت بدیع آئی. اب بڑھتے ہیں دوسری صفت کی طرف، اور وہ ہے خالق. لسان العرب میں خلق کا مطلب ہے التقدیر والایجاد علی ہیئۃ مخصوصہ، یعنی اندازے اور تناسب کے ساتھ وجود میں لانا اور خاص ترتیب دینا. قرآن کی مثالیں: 1. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو بجنے والی خشک مٹی سے پیدا کیا. 2. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. 3. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. 4. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. 5. وَخَلَقْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور ہم نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا. یہ سب کریشنز ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ لفظ خلق آیا ہے. اب ذرا غور سے سوچو، اللہ نے اپنی کتاب میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، بدیع اور خالق. یہ دونوں تخلیق سے جڑے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ٹائم اور سپیس یہ وہ فاؤنڈیشن ہیں جن کے بغیر کسی مخلوق کا تصور ہی ممکن نہیں. اگر وقت نہ ہو تو کوئی ایونٹ رونما نہیں ہو سکتا، اگر جگہ نہ ہو تو کوئی ایگزسٹنس قائم نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ نے وقت اور جگہ کو بھی کسی موجود چیز کے بغیر پیدا کیا. نہ کوئی مادہ تھا، نہ کوئی انرجی، نہ کوئی ایگزامپل، نہ کوئی پروٹوٹائپ. یہ سب براہ راست اللہ کے حکم کن فیکون پر وجود میں آئے. اسی لیے قرآن نے ان کے ذکر کے ساتھ صفت بدیع استعمال کی، یعنی اللہ ایبسلیوٹ اوریجنیٹر ہے جو کسی سابقہ مثال کے بغیر نئی کریشن لاتا ہے. اب دوسری طرف دیکھو، انسان، جانور، پودے، پہاڑ، دریا، رات دن،
सूरज और चांद, ये सब किसके अंदर पैदा हुए? ये सब इन्हीं फाउंडेशंस, टाइम, स्पेस और एनर्जी के अंदर तख्लीक हुए। यानी पहले एक निज़ाम और बुनियाद तैयार की गई, फिर इन्हीं के अंदर इनकी क्रिएशन हुई। इसीलिए कुरान ने इन सब के लिए सिफत खालिक इस्तेमाल की। खालिक वो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स और फाउंडेशंस को लेकर इन्हें तनासुब और तरतीब के साथ एक ख़ास शक्ल देता है। तो फ़र्क ये है, बदीर जब अल्लाह ने पहली बुनियादें टाइम एंड स्पेस किसी भी चीज़ के बग़ैर ओरिजिनेट की, खालिक जब अल्लाह ने इन्हीं बुनियादों टाइम, स्पेस, एनर्जी, मैटर के अंदर बाकी मखलूक़ात को क्रिएट किया। इस्लामिक एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स या इस्लामिक कॉस्मोस एवोल्यूशन की एक झलक है, लेकिन ये हमारा असल मौजू नहीं है। इस पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे। अगला पॉइंट, अब हम एक और बड़े पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और जब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलेंगे तो जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी तक जैसा कि हमने इस्लामी यूनिवर्स का एवोल्यूशन या इस्लामी कैस्मोस का एवोल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा कुरान से एक्सप्लेन किया, तो कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ मुसलमानों की किताब में ही लिखा है। हमें साइंस, मंतिक और फ़लसफ़े में भी यही हकीकत मिलती है। साइंस इसे बिग बैंग कहती है कि वक्त और जगह एक ही लम्हे में अदम से वजूद में आए। मंतिक इसे कॉज एंड इफ़ेक्ट के उसूल के ज़रिए समझाती है कि हर चीज़ की एक इल्लत है और ये सिलसिला लामहदूद नहीं चल सकता, कहीं जाकर रुकना ही होगा। फ़लसफ़ा इसे कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के तौर पर बयान करता है कि कायनात का एक पहला सबब होना ज़रूरी है। और भी बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स और थ्योरीज़ हैं जो इसी हकीकत को मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान करती हैं। खैर, मैं यहाँ ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, बस इतना काफ़ी है कि ये मौजू मुख्तलिफ मैदानों में कवर हो चुका है। इसी तरह मेरा मकसद दूसरे मौजू पर भी ज़्यादा लंबा बोलना नहीं है, क्योंकि ये तो सबको मालूम है। वो है ह्यूमन सोर्स ऑफ नॉलेज और उसकी लिमिटेशंस। इंसान ने हकीकत तक पहुंचने के लिए बेशुमार ज़राए आजमाए। उसने अपनी आंख और कान पर भरोसा किया, सेंसेस से मुशाहिदा किया, अक्ल इस्तेमाल की, मंतिक से नताइज निकाले, तजर्बात किए और साइंस के दरवाजे खोले। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी तक। उसने तारीख पढ़ी, आसार खोदे, पुरानी किताबों से माजी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, दिल के अंदर झांका, इंट्यूशन और वजदानी शऊर से हकीकत का सुराग लगाया और दूसरों की रिपोर्ट्स और शहादत पर भी भरोसा किया। मगर ये सब ज़राए महदूद हैं। आंख एक हद से आगे अंधी है, कान एक खास फ्रीक्वेंसी के बाद खामोश हैं, अक्ल प्रेमिसेस पर डिपेंड करती है, गलत बुनियाद पर गलत नतीजा देती है, साइंस टेंटेटिव है, थ्योरीज बदलती रहती हैं, तारीख नाकिल पर खड़ी है और वजदानी शऊर शख्सी है। सब इंसान एक जैसे नहीं सोचते, ना एक जैसे महसूस करते हैं। इसीलिए फ़लसफ़ा खुदा के वजूद पर बहस करता रहा। प्लेटो ने द गुड की बात की, एरिस्टोटल ने अनमूव्ड मूवर का तस्वुर दिया, अगस्टिन और एक्वाइनस ने खुदा के लिए मजबूत दलाइल दिए। एक्वाइनस की 5 वेज आज भी जिंदा हैं। इब्न सीना ने वाजिबुल वजूद कहा, गज़ाली ने कलामी दलील पेश की, इब्न रुश्द ने अक्ल और वही को मिलाने की कोशिश की, मौलाए सदर ने वहदतुल वजूद को आगे बढ़ाया, डार्विन ने एंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, कांत ने मॉरल लाइओवर का जिक्र किया, लेकिन डेविड होम ने शक पैदा किया। नीची थे ने कहा गॉड इज़ डेड और सार्ट ने कहा इंसान अपने मानी खुद तख्लीक करे। साइंस में भी यही हुआ। बिग बैंग थियरी ने बताया कि कायनात की इब्तदा हुई, फाइन ट्यूनिंग ने कहा कि कवानीन इतने प्रिसाइज हैं कि ये डिज़ाइन की निशानी है, पेली ने वॉच मेकर एनालॉजी दी, मगर डार्विन ने इवोल्यूशन की बात की, डॉकिंस ने द गॉड डिल्यूजन लिखी, हॉकिंग ने कहा नेचुरल लॉज काफ़ी हैं।
दूसरी तरफ प्लैंटिंगा ने कहा कि खुदा पर ईमान इंसान की फितरत है, और विलियम लेन क्रेग ने गजाली की कलामी दलील को रिवाइव किया। दोस्तों, ये सब हमें क्या सिखाता है? यही कि इंसान ने हर सोर्स और हर फील्ड इस्तेमाल की, सेंसेस, अक्ल, साइंस, फलसफा, तारीख और विजदान। कभी खुदा के वजूद के हक में दलाइल दिए, कभी उसके खिलाफ, मगर आखिरकार सब एक हद पर आकर रुक गए, और वो हद है क्रिएशन की बाउंड्री। चाहे प्लेटो की द गुड हो, एरिस्टोटल का अनमूव्ड मूवर, इब्न सीना का वाजिबुल वजूद, गजाली की कलामी दलील, एक्वाइनस की 5 तरीके, कांट का अखलाकी कानून, या जदीद साइंस का बिग बैंग और फाइन ट्यूनिंग, डारोन और डॉकिंस का एवोल्यूशन और डिल्यूजन, ये सब अपनी अपनी जगह पर अहम हैं मगर इनकम्प्लीट हैं। इंसान अपनी इनर यूनिवर्स या आउटर यूनिवर्स में रिसर्च करके चाहे कितनी भी गहराई में उतर जाए, क्रिएशन की आखिरी बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, जब तक कि कोई बाहर से हमसे राब्ता ना करे, और वो राब्ते का वाहिद जरिया है वही रेवलेशन। उम्मीद है यहाँ तक सब बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, और वो है वही। वही एक ऐसा जरिया है जो खालिक से मखलूक तक आता है। ये वो वाहिद चैनल है जो क्रिएशन को क्रिएटर की खबर देता है, और ये हमेशा खालिक की तरफ से होता है। कोई इंसान, कोई मखलूक अपनी फितरत और अपने ज़राए से कभी उस तक नहीं पहुंच सकती। कुरान कहता है, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। यानी किसी बशर की मजाल नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही के ज़रिए, या पर्दे के पीछे से, या एक रसूल भेजे और वो उसके हुक्म से वही करे। ये आयत हमें बताती है कि वही इंसान के जोर या कैप्टिविटी से नहीं मिलती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे अक्ल या सेंसेस से हासिल किया जा सके। ये तो सिर्फ अल्लाह का इंतखाब है, उसका फजल है। वो जिस पर चाहे करम करे और उसे अपना मीडियम बना ले। वो मीडियम इंसान होते हुए भी क्रिएटर से बराह रास्त इल्म लेता है और फिर क्रिएशन तक पहुंचाता है। अब आइए कुरान पर। सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया, अलिफ लैम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उनके लिए जो तक़वा रखते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो दिया उसमें से खर्च करते हैं, जो ईमान लाते हैं इस पर जो तुम पर उतारा गया और इस पर जो उनसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हिदायत पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने शुरू ही में कहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी ईमान उन चीज़ों पर जो तुम्हारे 5 हिस्सों से बिल्कुल बाहर हैं। वो हकायक जो न देखे जा सकते हैं, न सुने जा सकते हैं, न छुए जा सकते हैं, और जब ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते तो इल्म में कन्वर्ट करना भी नामुमकिन है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, अब तुम इस पर ईमान ले आओ। इसलिए नहीं कि ज़बरदस्ती कहा जा रहा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे ज़राए इल्म तुम्हें इस हकीकत तक कभी नहीं ले जा सकते। और फिर फरमाया, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, यानी ईमान सिर्फ एक किताब पर नहीं बल्कि इस पूरे सिलसिले पर जो वही के ज़रिए आता रहा। ये वो हकायक हैं जो बाद में साइंस ने साबित किए, हिस्ट्री ने कन्फर्म किए और इंसान ने कानून व अदालत में भी तस्लीम किए, लेकिन पहला दरवाज़ा हमेशा वही ने खोला। अब ज़रा इस पूरे सफ़र को इकट्ठा देखो। हमने जाना कि अल्लाह ने यूनिवर्स की बुनियाद टाइम और स्पेस को अदम से पैदा किया और उसके लिए सिफत बदीए ज़िक्र की। फिर बाकी मखलूक़ात को इन्हीं फाउंडेशंस में मौजूद एनर्जी और मटीरियल से बनाया, तदरीज और तदबीर के साथ, और उसके लिए सिफत खालिक बयान की। फिर हमने समझा कि यूनिवर्स के अंदर रहने वाला इंसान कभी भी उसके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद
उसी निज़ाम का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए ये सवाल उठा, हमें इस बाउंड्री के बाहर की खबर कौन दे सकता है? और जवाब मिला, सिर्फ वो जो खालिक है और जिस पर यूनिवर्स के कवानीन भी लागू नहीं होते। अल्लाह ने इसके लिए एक निज़ाम बनाया, नबूवत, रिसालत और किताब। ये तीनों मिलकर वो चैनल हैं जिनके ज़रिए इंसान को प्योर नॉलेज मिलता है, वो इल्म जो सरासर हक है, जिसमें कोई शक नहीं। ये था हमारा बेस, और अब इस बुनियाद पर हम वजूद खुदा से मुतालिक हर सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना ज़रूरी है। सुनने वाला ये ना समझे कि हमने कुरान को बुनियाद बनाकर सब कुछ साबित किया है। नहीं, हमने तो अभी यहाँ तक ये दिखाया है कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने ज़राए और चैनल्स के ज़रिए कभी भी मेटाफिज़िक्स की हकीकतों को कंफर्म नहीं कर सकता। चाहे वो कितनी रिसर्च करे, कितनी इमेजिनेशन करे, आखिरकार सब कहानी ही रह जाएगी और कुछ नहीं। और इस हकीकत को आज हर अहले इल्म मानता है। हमने इसी बात को अपना बेस बनाया है और फिर इसका हल भी बताया है, और वो हल है वही जो अल्लाह ने निज़ाम नबूवत और रिसालत के ज़रिए दिया है। और यही ईमान है जिस पर हर मुसलमान खड़ा है। वो ईमान जो बग़ैर देखे, बग़ैर समझे रसूलुल्लाह की तस्दीक करता है, और यही है ईमान बिलग़ैब। इस एपिसोड में हमने देखा कि ह्यूमन सोर्सेज और चैनल्स सब लिमिटेड हैं, और वही ही इस लिमिटेशन का वाहिद जवाब है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम ये भी दलाइल के साथ साबित करेंगे कि वही ही एक वाहिद सोर्स है, द वन एंड ओनली चैनल, जो हमें रियल गॉड का इल्म देता है और वो हकीकतें बताता है जो हमारी अक्ल और साइंस कभी नहीं जान सकती। दोस्तों, ये था आज का सफ़र। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हक को हक समझकर मानने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।